آج میں آپ سے بات کروں گا آپ کی دانتوں کی صحت کے متعلق۔ سب جانتے ہیں کہ دانت اگر صحت مند نہ ہو تو نہ ہی مسکرانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کبھی کبھار کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر احمد۔ آپ نے اکثر دیکھا سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ میٹھے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، یا ہمیں یہ پڑھایا سنایا گیا ہے کہ دانت دن میں 2 دفعہ دانت کم از کم صاف کرنے چاہیے، ورنہ دانت خراب ہو جائیں گے۔ کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنک سے دانت خراب ہوتے ہیں، یا پانی کم پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں، یا پان چالی یا سگریٹ وغیرہ سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں ان میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر دیتا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق دانت میٹھے سے نہیں بلکہ چینی سے خراب ہوتے ہیں۔ میٹھا جتنا مرضی کھائیں، چینی والی چیز نہ کھائیں۔ چینی میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو دانتوں کو اوپری سطح کو کمزور کر دیتے ہیں، دانت اوپر سے جھڑنے لگتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے کھڈے بن جاتے ہیں۔ ان کھڈوں میں پھپھوندی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں عموماً کہا جاتا ہے بیکٹیریا ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے۔ انفیکشن تو ہے، لیکن یہ بیکٹیریا نہیں، یہ فنجائی ہوتی ہے۔ دانتوں میں جب فنجائی لگ جاتی ہے تو وہ فنجائی کالی شکل میں شروع میں عموماً براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی فنجائز ہوتی ہیں، وہ بڑھوتری جب کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے فنجائی بھی اپنے لیے جگہ بناتے ہیں۔ کچھ ہمارے جسم میں کیلشیم کی بھی کسی وجہ سے کمی ہے تو فنجائی دانتوں کو کھانے لگتے ہیں، اپنے لیے جگہ بنانے لگتے ہیں، جس سے بعض اوقات دانتوں میں آہستہ آہستہ سوراخ بن جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانتوں میں کیڑا ہے۔ اچھا، سافٹ ڈرنک یا کولڈ ڈرنکس سے دانت خراب ہوتے ہیں، کسی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن میں پھر آ جاتا ہوں چینی کی طرف۔ اور دوسری بات، سافٹ ڈرنکس میں کولڈ ڈرنکس میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، چینی کے ساتھ ساتھ ان ڈرنکس میں سوڈا بھی ہوتا ہے، سوڈا بائی کاربونیٹ، اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور سوڈا مل کر دانتوں کے انیمل کو بری طرح تباہ کرتا ہے۔ دانت بہت بری طرح خراب ہوتے ہیں، اور عموماً ہم سب کی عادت ہوتی ہے کہ کولڈ ڈرنکس کا گھونٹ لے کر فوراً نہیں نگلتے، تھوڑی چند لمحوں کے لیے منہ میں رکھ کے پھر نکل لیتے ہیں، اور یہی ٹائم کافی ہوتا ہے دانتوں کو خراب کرنے کے لیے۔ دوسرا، یہی سوڈا، یہی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور یہی چینی جب اندر جا کے خون کے ذریعے دوبارہ ہڈیوں کو ملتے ہیں تو اس سے صرف دانت نہیں، تمام جسم کے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اچھا، پان چھالیاں سگریٹ وغیرہ سے دانت خراب ہوتے ہیں، کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ عقل مند آدمی پان چھالیاں یا سگریٹ استعمال ہی نہیں کرے گا۔ جو لوگ پان چھالیاں سگریٹ استعمال کرتے ہیں ان سے آپ صفائی کی توقع بالکل بھی نہ رکھیں۔ ان کی صفائی نہیں ہوتی۔ دانتوں کی صفائی کم از کم دن میں 5 بار ہو تو بہترین دانت ہوتے ہیں۔ آپ کے دانت زندگی بھر، چاہے آپ کی 150 سال زندگی ہو، آپ کے دانت نہیں گریں گے، یہ میری گارنٹی ہے آپ کو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دن میں کم از کم 5 بار آپ دانت صاف کرتے ہیں۔ 5 سے کم بار صاف کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ دوسری، منہ سے جو بدبو آتی ہے دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ بھی عموماً منہ میں فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فنگس منہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان میں انفیکشنز ہوتے ہیں، انفیکشن کی وجہ سے زہر بدبو ہوگی منہ میں۔ کبھی کبھار ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مسوڑے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دانت ہل رہے اور وہ خراب ہو رہے، یا ان کو نکالنا پڑتا ہے وغیرہ۔ جی نہیں، مسوڑے کمزور ہونا دوسری بات ہے۔ پہلی بات فنجائی ہے، فنگل انفیکشن۔ پھپھوندی اپنا انفیکشن اتنا زیادہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں میں سکڑن آ جاتی ہے، انفلیم ہو جاتے ہیں، سوج جاتی ہے، اور وہ انفیکشن کی وجہ سے وہ سکڑ جاتی ہیں۔ سکڑنے کی وجہ سے ان سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، ان میں پس بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، اور دانتوں کی جڑیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، پیوریا جس کو کہتے ہیں۔ یہ انتہائی شدید قسم ہے پھپھوندی کی، شدید سٹیج ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دن میں 2 بار یا 1 بار لازمی فلاس کیا کریں۔ فلاس مطلب تار دانتوں کے درمیان میں تار سے صفائی کر لیا کریں۔ یہ بالکل غلط بات ہے میرے نقطہ نظر سے۔ اس کی وجہ یہ کہ فلاس کرنے سے دانتوں میں دھاگا یا تار وغیرہ لگانے سے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ 6-7 مہینے سال کے بعد اس میں ماچس کی تیلی بھی آرام سے ہم لگا لیتے ہیں۔ تو فلاس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہترین طریقہ وہی ٹوتھ برش یا مسواک وغیرہ ہے۔ کچھ ڈاکٹر حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ دودھ سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک میں ایڈیٹنگ پھر کروں گا۔
दूध से दांत खराब भी होते हैं। दूध में मौजूद चिकनाई या दूध में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स जैसे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, वैसे ही ये फफूंदी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लिहाजा दूध पीने के फ़ौरन बाद या मलाई वगैरह या मक्खन खाने के फ़ौरन बाद लाज़मी कुली किया करें, बल्कि हर खाने के बाद कुली किया करें ताकि आपके मुँह से बदबू भी ना आए और आपकी फफूंदी को कम से कम खुराक मिले, उनकी ग्रोथ कम से कम हो, उनकी हो सके अंदर से आपका इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा है तो हो सकता है ये ख़त्म ही हो जाए। आपके मुंह में अगर मुकम्मल सफाई है, फंगस फंजाई फफूंदी नहीं है, तो यकीन जानिए आपके मुंह से जो सांस निकलती है, जो हवा खारिज होती है, वो खुशबूदार अगर ना हो तो बदबूदार हरगिज़ नहीं होगी, दूसरे अगले बंदे को बुरी नहीं लगेगी। ये आपके मुंह के अच्छी सेहत की अलामत है। एक और बात हमें बताई जाती है कि सब्ज़ चाय पीने से दांत अच्छे हो जाते हैं। सब्ज़ चाय जो पहले ज़माने में मिलती थी, वो अलग पौधा था। आज जो हमें सब्ज़ चाय के नाम पे जो पत्ते दे दिए जाते हैं, ये सब्ज़ चाय के पत्ते नहीं है, किसी और पौधे के पत्ते हैं जो सब्ज़ रंग हमें देते हैं, अच्छा जायका, अच्छी खुशबू देते हैं। सब्ज़ चाय के पत्ते अगर सूख जाएँ तो वो सिकुड़ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने फ़ोल्ड किया हुआ होता है। जबकि हमें जो आजकल चाय के पत्ते मिल रहे हैं तो वो इस्त्री किए हुए पड़े होते हैं। कभी कभार लोग दांतों में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आरसीटी करवाना पड़ता है, यानी कि दांतों की जड़ों को निकाल देते हैं। किसी भी दरख्त पौधे किसी भी जानदार की अगर आप जड़ निकाल लें तो वो चीज़ मुर्दा कहलाती है। अगर आप दांतों से जड़ निकाल लेते हैं, आरसीटी करवा लेते हैं, तो आपके दांत मुर्दा हो जाते हैं और आपका वो वाला दांत मुर्दा हो जाता है और 5-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने के बाद उस वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और वही दांत आपको निकालना पड़ता है। कभी कभी आरसीटी में भी अंदर गंदगी रह जाती है, सफाई अच्छी तरह नहीं हुई होती, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और आरसीटी के चंद दिन बाद, हफ्ते बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है। एलोपैथी में इन्फेक्शन के लिए, दांतों के किसी भी इन्फेक्शन के लिए सिर्फ आरसीटी नहीं, एंटीबायोटिक्स एडवाइस की जाती हैं, पेनकिलर्स एडवाइस की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स फंजाई पे असर नहीं करती, किसी भी फफूंदी पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। फंजाई के लिए एंटी फंगल अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। पेन किलर ठीक है, वो काम हो जाता है उससे। हमारे जो चबाने वाले दांत होते हैं, पिछले वाले चौड़े वाले दांत, इनका ताल्लुक बरह रास्त दिल से होता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल आसान आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई सख्त चीज़ अगर आपके दांत के नीचे आ जाए चबाते वक्त, खाना खाते वक्त, तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये दर्द की वजह से नहीं है, मैं समझाता हूँ आगे आपको। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो जाए और तो भी आपको आपकी हार्ट बीट में तब्दीली होगी। अब बेशक आपकी उम्र जवान भी आप जवान ही क्यों ना हो, आप बीपी चेक करवाएं, आपके बीपी में फ़र्क होगा। जिनको दांतों में इन्फेक्शन अक्सर रहता हो, उनके थायराइड ग्लैंड्स में, उनके टॉन्सिल्स में हमेशा इन्फेक्शन रहते होंगे। और ये टॉन्सिल्स भी ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स ऐसी चीज़ें हैं कि एक ग्लैंड अगर बीमार होता है तो यकीन जानिए जिस्म के तमाम ग्लैंड्स इससे मुतासिर होते हैं। और हमारे ग्लैंड जो हैं, ये हमारे जिस्म में, हमारे इम्यून सिस्टम में, क़ुव्वत मुदाफ़अत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ऐसे लोग जिनके ग्लैंड्स या किसी कोई भी एक ग्लैंड बीमार हो तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। जिन लोगों के दांत गंदे रहते हैं, जो सफाई नहीं करते, उनको दिल के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, ये 100% कन्फर्म है। लिहाजा दांतों की कम से कम दिन में 5 बार 3 बार लाजमी सफाई किया करें। एलोपैथी में जैसे मैं बता चुका हूँ, वो लोग एंटीबायोटिक से एडवाइस करते हैं। मेरे ख्याल में एंटी फंजल इस्तेमाल करनी चाहिए। होम्योपैथी में दांतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटी फंगस अद्वियात भी हैं। और हैरत की बात यह है कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो दांतों को रीग्रो कर देती हैं, यानी दोबारा से दांत निकल आते हैं। जो दांत टूटे हुए हैं, जिनमें सुराख बने हुए हैं, कीड़ा लगा हुआ है, वो दांत भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये हड्डी है, हड्डी की ग्रोथ स्लो होती है, प्रोसेस बहुत लंबा है, साल 1.5 साल भी लग जाता है। आपके दांत के सुराख पर डिपेंड करता है कितना ख़राब है। बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात हैं जो कीड़ों को, यानी फंजाई को, फंगस को, फफूंदी को फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं जो लोकल अमूमन होते हैं, जो आके कुछ नहीं कहते हैं, बस सीधी सी बात करते हैं, जी दांत दर्द वाली दवाई दें। अमूमन उनके जबड़े मुँह सूजे हुए होते हैं। उनको मैं सीधा सीधा सादा 200 बेसिलियम की 8-10 गोलियाँ दे देता हूँ। 2-3 गोलियों में मतलब एक दिन में वो मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। उनका इन्फेक्शन, उनकी सूजन फ़ौरन बैठ जाती है। और अमूमन उनकी गोलियाँ उनके पास इजाफ़ी घर में पड़ी होती है और लोगों के काम आ जाती हैं।
इसी तरह होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी होती हैं। मुख्तसर ये कि मैंने लिंक दी हुई है, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से कैंडिडियासिस और फंगल इन्फेक्शंस के वेबसाइट्स खोलें, 2 अलग-अलग पेजेस हैं, और वहीं से हड्डियों के मुतालिक जो भी आपको करीबी मिले आर्थराइटिस वगैरह के, वहाँ से कैल्शियम्स लें। ये बात मैं डॉक्टर ख़वातीन हज़रात के लिए बता रहा हूँ। वहाँ से मेडिसिन्स नोट करें, अपने मरीज़ों के लिए कम्बिनेशंस बनाएं, प्रॉपर फार्मूला बना कर दिया करें, ताकि आपके मरीज़ कम वक्त में कम पैसों में ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, कोई एक दवाई दे रहे हैं, पहले दवाई से पहले, दवाई के दौरान, दवाई के बाद के असरात देखे जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इलाज कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी प्रॉपर फार्मूला बना कर दिया करें। कुछ लोगों को हर्बल अद्वियात अच्छी लगती हैं, उनके लिए मैं बहुत बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ। इससे आप टूथ पाउडर भी बना सकते हैं, इससे आप टूथपेस्ट भी बना सकते हैं, और ये आपको झाग भी बना कर देगा, चाहे या टूथ पाउडर की शक्ल में ही क्यों ना हो। करना क्या है कि आप पंसार से लें हल्दी, लौंग, थोड़ा सा काला दाना, और मसवाक, जो सफ़ेद रंग के मसवाक होते हैं। एक मसवाक होता है जिसको जैतून का मसवाक भी कहते हैं, उसको दांतों पे मलने से या इसी तरह उंगलियों से मलने से उसमें झाग भी निकलती है, झाग वाला मसवाक भी उसको कहते हैं, वो भी ले। दंदासा अगर आप नहीं जाते तो अखरोट के दरख्त की छाल या अखरोट के पत्ते या अखरोट का फ्रूट जो होता है, इसकी ऊपरी कवरिंग ग्रीन कलर की होती है, जब सूख जाए तो काले रंग की हो जाती है। इसमें से जो भी आपको मिल जाए ये लें, और साथ में सत पुदीना हल्का थोड़ा सा ले लें, और खुरनी नमक, आम टेबल साल्ट लें, पत्थर वाला नमक, और बादाम के छिलके लें। ये बादाम के छिलके जलाकर राख कर लें। इसको कोयला बनाना है और कोयला बनाकर ग्राइंड करना है। बाकी सख्त चीज़ों को भी अच्छा सा ग्राइंड अगर आपके पास है मजबूत, बाकी तमाम चीज़ों को ग्राइंड करें, अच्छी तरह से ग्राइंड करके बारीक कपड़े से छान लें, या ज़ीरो मैश का जो छलनी मिलती है उससे छान लें, मुकम्मल पाउडर बना लें इनका। और नमक को भी दोबारा से ग्राइंड करके मुकम्मल पाउडर बना लें। सत पुदीना, जब ये पाउडर आपको मुकम्मल छना हुआ पाउडर आपके पास आ जाए, इसको दोबारा से ग्राइंडर में डालकर अब इसमें सत पुदीना डाल के दोबारा से ग्राइंड करें, सहबारा ग्राइंड करें, ताकि सत पुदीना इसमें मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए। ये आपके पास ग्रे कलर का एक येलोइश ग्रे कलर का या कैमल कलर का एक पाउडर बन जाएगा। इससे आप सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा दांत साफ़ किया करें। कम अज़ कम 2 दफ़ा तो लाजमी करें, लेकिन इससे आपके दांत सिर्फ सेहतमंद रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दांतों के सुराख दोबारा से भर जाएँ तो 3-4 दफ़ा सफाई किया करें। आपके साल 1.5 साल में आपके तमाम दांत दोबारा से उग आ जाएंगे और भर जाएंगे, दोबारा से आपके दांत ठीक ठाक हो जाएंगे। इसी टूथ पाउडर से अगर आप टूथपेस्ट बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल, और उसमें थोड़ा सा SLS बनाकर पेस्ट बना लें। मार्केटिंग करनी है तो टूथपेस्ट में ट्यूब्स में भर लें, और अगर घर पे इस्तेमाल करना है तो भी आपके पास पेस्ट बन गया है। SLS की वजह से, जैतून खोपरे कोकोनट तेल की वजह से इसमें झाग बहुत ज़्यादा बनती है, इतनी कि आप उससे मुँह भी धो लें। लेकिन अगर आप इसमें SLS और खोपरे का, जैतून का तेल ना भी डालें तो भी इसमें बहुत अच्छी तरह झाग बनेगी। इंतहाई बेहतरीन सफाई करता है, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंजल, एंटी फंगस, बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। बनाइए, फ़ायदा उठाएं, मुझे दुआ में याद रखिए। मज़ीद वीडियोज़ अगर आपको किसी भी किस्म की वीडियो चाहिए तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिख दिया करें। मेरी इस वीडियो में आपकी कोई कमी हो, कोई खामी हो, या कुछ मज़ीद आपको जानना हो तो भी कमेंट में लिखते हैं, या मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया करें, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।